Good morning, students. This is a chemistry matter in our surrounding. Next question of this chapter, Brownian movement. This is also read in last video. Dust particles moves and randomly because moves randomly means any direction. Randomly because random moving of air collide with dust particles. ठीक है, सेम एज स्मोक. दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट इन स्मोक पार्टिकल. मीन्स स्मोक पार्टिकल्स हैव अ ब्राउनियन मूवमेंट. ओके, तो स्मोक पार्टिकल्स ऑल्सो मूव इन ब्राउनियन मूवमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑलरेडी रीड इन लास्ट चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. डिफ्यूजन मीन्स movement of molecules from a region of higher concentration to lower concentration. ये हमने पीछे पढ़ा था. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द सेल बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सेम यहाँ भी है. तो इसमें इसका एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ अ स्मेल. स्मेल मीन्स गैसेस. गैसेस, स्मेल इज अ गैस. It means gas easily spread by diffusion method. What are the causes of change in state of a matter? Next topic is cause of change in state of matter. What is the cause of? This is a state mainly change in next state. Matter can be changed from one state to अनदर स्टेट. एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर. ठीक है, वाटर सॉलिड मीन्स आपका आइस. आइस कन्वर्ट इनटू वाटर. वाटर कन्वर्ट इनटू इवेपोरेशन. इट्स मीन्स डिफरेंट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट्स. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. व्हाट इज द फैक्टर्स? दीज आर फैक्टर्स इज फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. व्हेन इंक्रीज अ टेम्परेचर ऑफ मैटर, this is convert into next state. जैसे फॉर एग्जाम्पल when increased our temperature. इंक्रीज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब बॉयल करते हैं. जैसे वाटर है, आप बॉयल कर रहे हैं तो इट्स मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. इट्स मीन्स दिस इज वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स. क्लियर? तो व्हेन चेंज इन टेम्परेचर दिस इज कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट स्टेट. तो फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? Factors means temperature first is melting point and second is boiling point. Melting point also called a fusion. In it is the temperature at which a solid change into liquid. Melting means melt होना. ठीक है, तो it is temperature, आपका melting temperature या melting point called a temperature at which a solid change into liquid. जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस कन्वर्ट इनटू वाटर. तो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर. तो दिस इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज अ 0. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं. बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग का मतलब हम समझ रहे हैं. बॉइलिंग मीन्स बॉइल करना. तो बॉइलिंग पॉइंट, तो all materials, all pure matters, all pure substances have a different melting point and have a different boiling point. जैसे for example in water, boiling point is 100 degree Celsius and melting point is 0 degree Celsius. Clear? But other materials या other substance have a different boiling point and different melting point. Temperature at which a liquid change into gas. Gas means vapors. ठीक है, तो this is a water convert into vapor. तो this temperature called a boiling point. Next is latent heat. This is a important or normally firstly read in this chapter or normally next topic is this one. The amount of heat required to convert 1 kg of liquid at this boiling point to gas at same
temperature, the amount of heat required to convert means 1 kg of material when convert into liquid, ठीक है, तो amount of heat which required for a conversion 1 kg of material into liquid. So this is a boiling point to gas at same temperature. This is called a latent heat. Clear है? The amount of heat required to convert 1 kg of liquid at its means इसके boiling point पर liquid है इसलिए at this boiling point to gas at same temperature called a latent heat. ओके, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ था, तो इस कंडीशन में एट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ बॉइलिंग टाइम 100 डिग्री सेल्सियस, but after some time this is evaporate easily. So amount of heat required to convert 1 kg of liquid it into boiling part gas into gas. It means convert into gas. So this is called a latent heat. Different liquids matter have different latent heats. Okay, जैसे for example oil है, oil have a different latent heat because this is its boiling point at different and vaporization at a different temperature. तो नॉर्मली यदि हम देखें तो ऑल मैटर्स हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो इट्स मीन्स हैव अ डिफरेंट लेटेंट हीट. नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर. फर्स्ट इज सॉलिड. सॉलिड में हम देखें ध्यान से, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स. नो इफेक्ट मीन्स प्रेशर दिस फैक्टर नॉट शो ऑन अ सॉलिड्स बिकॉज नॉर्मली जो सॉलिड्स हैं आप उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेक कहा था या आपकी बुक है, तो दिस इज नो चेंज, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड. बी नेक्स्ट पॉइंट इसी का सेम, नॉन कंप्रेसिबल मीन्स नॉट अ कंप्रेसिबल, नॉट अ कंप्रेस्ड इजीली, तो दिस इज अ सॉलिड. सेम एज प्रेशर ऑन अ लिक्विड. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ लिक्विड, फर्स्ट इज नो इफेक्ट और सेकेंड इज नो कंप्रेसिबल. नॉन कंप्रेसिबली नॉट कंप्रेस्ड. अब नेक्स्ट आते हैं गैस. द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, जैसे मैंने कल बताया था कि वैन परफ्यूम या वैन आपका जो डिओ है, वैन डिओ लाइक मटेरियल्स easily compressed in a small bottles and after spraying this is free in our environment, so volume of gas easily decreased by the pressure. Clear? So the volume of gas decrease with increase in pressure. Next point, have a lot of space between the, what is the cause of this one? To have a lot of space between the particles of gas because gas particles have a more space, so this is easily compressed. Next factor is a evaporation factor. evaporation का मतलब होता है कि evaporate होना, ठीक है, convert into vapors. तो this is a phenomena. what phenomena means? This is a एक function. तो this is a phenomena in which, जिसमें क्या होता है, a liquid change into vapors. यही तो होता है. इवोपरेशन मीन्स लिक्विड चेंज इन वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग से पहले ही वाटर बॉयल होता है, उससे पहले ही आपका क्या होता है कि वाटर वेपर्स आपका बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो इन टू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन. ये तो हो गया इवोपरेशन की डेफिनेशन. This is a phenomena in which a liquid change into vapors below its boiling point. So what is the factors show effect on a evaporation? So firstly temperature, surface area, humidity and wind. तो this is a change. तो नॉर्मली विदाउट एग्जाम्पल तो हम समझ नहीं सकते, तो एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. चेंज इन टेम्परेचर, इवोपरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल
कोई जैसे इवापोरेशन जब आपका कम टेम्परेचर होता है तो इवापोरेशन लेस, ठीक है, और एट अ हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इंक्रीज्ड। समझ में आ रहा है? जैसे गर्मी है, गर्मियों में क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और सर्दियों में इवापोरेशन कम होता है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर इन विंटर एंड इन समर, बोथ सीजन्स या बोथ टाइम हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर, सो इवापोरेशन विल बी चेंज। सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 1 लीटर वाटर एक प्लेट में डाल दिया, 1 लीटर वाटर मैंने एक बाउल में रख दिया, ठीक है। तो इवोपरेशन, मैक्सिमम इवोपरेशन सो इन प्लेट, ठीक है। मैक्सिमम वाटर इवोपरेट इन फ्रॉम द प्लेट इन अ लेस टाइम, ठीक है। कम समय में आपका वाटर जो है वो प्लेट से ज़्यादा इवोपरेट हो जाएगा कंपेरेटिवली आपका स्मॉल बाउल। ह्यूमिडिटी, जैसे बारिश का मौसम होता है, ठीक है, और यह इस समय जो आपका समर सीजन है, तो चेंज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आपका वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, क्लियर। तो इन आप रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज अ मोर, तो इट्स मीन्स वाटर वेपर्स इंक्रीज्ड इन रेनी सीजन, तो वाटर वेपर्स इंक्रीज इन रेनी सीजन, इस मीन्स इवोपरेशन विल बी लेस। तो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में हमारे कपड़े बहुत टाइम में सूखते हैं और समर सीजन्स में इजीली सूख जाते हैं। नेक्स्ट है विंड, चेंज इन स्पीड ऑफ विंड, जैसे फॉर एग्जांपल जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जब हवा नहीं चल रही होती है, जैसे अपन रूम में अपने सर्दियों में क्या करते हैं कि आप रूम में कपड़े सूख रहे हैं, है ना, जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन अपन जैसे ही पंखा चला देते हैं कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड ऑफ विंड, यदि हम स्पीड ऑफ विंड चेंज करते हैं तो इवेपोरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स चेंज द इवेपोरेशन रेट ऑफ द मटेरियल्स, तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडेंसेशन, दिस इज रीड इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा।